A very good morning to all of you. So today we are going to continue our chapter which is environmental education, and our topic for today is action plan for improving environment. Today we are going to study about the action plans for improving environment. Action plan जो कि किसके लिए थे? Environment को improve करने के लिए. So there are some plans. Number one, spreading environmental information. क्या करना? Environmental information को क्या करना? Spread करना, फैलाना. So developing such educational structure as would inspire environmental awareness. Environmental education should embrace national policy as environmental education should impart information as regard principle of environment. Environmental education should involve local environment, local trees and plants, and local living creatures. Environmental education should be based on practical. So these are some very important information for protecting our environment. Number two, environmental education and training. Several research and development activities have been started intending to promote environment. कुछ क्या किए गए? रिसर्चेस किए गए, कुछ एक्टिविटीज़ को चलाया गया एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए. एनवायरमेंटल एजुकेशन हैज़ बीन मेड एसेंशियल फॉर ऑल दोज हु इन एनी मैनर आर लिंक्ड विद एनवायरमेंट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. जो भी इनसे लिंक थे उनको क्या करना था? इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या था? एनवायरमेंटल एजुकेशन इंपॉर्टेंट था फॉर दोज पीपल जो UNESCO और WHO से लिंक थे. सो बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस किए गए, ऐसा ट्रेनिंग दिया गया फॉर इम्प्रूविंग आवर एनवायरनमेंट, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट. Number three is pollution control board. Pollution control board at district, state and national level keep a vigilant eye on the industry and penalize those who are caught spreading pollution. बहुत सारे ऐसे pollution control boards भी बनाए गए. Number four, wildlife conservation. National Wildlife Plan has been formulated aiming at conservation of wildlife. बहुत सारे national wildlife के क्या बनाए गए? उनको formulate किया गया जिनका aim क्या था? Conservation of wildlife था. Number fifth is Indian Biological Survey Department. This department studied various areas of our wildlife. ये जो कुछ department बनाए गए Indian Biological Survey करके, इनका काम क्या था? स्टडी करना किस चीज़ के बारे में? वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिसके अंदर क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री और पब्लिक हेल्थ. गवर्नमेंट स्टेप्स एमिंग एट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. नेक्स्ट अप वी हैव इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स. जो इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं. ठीक है, किसके लिए? इंटेंडिंग एनवायरमेंटल प्रमोशन एज बिलो, एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए. रिजर्व जोन्स, development of hill areas, development of barren land, research and development program, environmental training and education, green fuel scheme, Ganga action plan, enactment of pollution control laws, नेशनल पोल्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम. यानी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, जैसे कि हिल एरिया को डेवलप किया गया, बैरन लैंड यानी जो बंजर जो बेकार ज़मीन थी उनका डेवलपमेंट किया गया, ग्रीन फ्यूल स्कीम चलाई गई, यानी कि जब से ये स्कीम चलाई गई थी तब से लोगों को ग्रीन फ्यूल का ही इस्तेमाल करना था. गंगा एक्शन प्लान हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया. क्यों किया? वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. क्या? बहुत सारे एक्ट और लॉ बनाए गए किसके लिए? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. नेशनल पॉल्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगे. तो ये क्या थे? ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि किसने लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इज स्टेप्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. लाइक व्हाट? नंबर वन इज एक्सटेंशन ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट. सी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है? एक्सटेंशन ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट. द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड हैव बीन 98000 square kilometer as against the actual area of dash of 5166 square kilometer. In order to extend the area, every state government has started the functioning of one forest department. The government of Uttar Pradesh announced a scheme of large scale plantation. यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा वर्क किया. किस पे किया? जो भी लैंड्स थे अंडर फॉरेस्ट उस पर. नंबर टू इज मूवमेंट्स एनकरेजिंग बेटर एनवायरनमेंट. कुछ मूवमेंट चलाए गए एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक चिपको मूवमेंट चलाया गया. नंबर थ्री, क्रिएशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन.
कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जो क्या करते थे, एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करते थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ लोग जगह जगह पे विलेजेस पर जा करके क्या बताते थे कि किस तरीके से विलेज को हम क्लीन रख सकते हैं, कैसे अपने एनवायरमेंट को हम अच्छा क्लीन और नीट एंड क्लीन कर सकते हैं. नंबर 4, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस. लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई गई. द स्टेट गवर्नमेंट is generating awareness among the people at large so that they are contributing their own towards the cause of better environment. Number 5th is mobile environment laboratories. These mobile laboratories try to solve environmental problem. ये mobile laboratory क्या करते थे, environmental problem को solve करते थे on the very spot, तुरंत उसी वक्त. during 1997-88 rupees 2.44 lakh were allotted for such more laboratories. Number 6 is NOC, no objection certificate. Henceforth every new industry, जब भी कोई न्यू इंडस्ट्री आती है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, कुछ भी बनाती है प्रोडक्ट करते, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, NOC चाहिए. इस तरीके के भी काम चलाए गए. तो देखिए ड्यूरिंग 1997 से 98 में 1414 इंडस्ट्री वर अलॉटेड सच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्होंने अलॉट किया. एंड द एप्लीकेशन ऑफ 1536 इंडस्ट्री वर रिजेक्टेड ड्यू टू non-fulfillment of the statutory terms. Number 7 and the last, appeal from the public. So अब यहाँ पे last point जो है is very important. Public से कुछ इन्होंने अपील किया. Some points which are very very important for protecting our government. Without the support of our public, it is not possible for us to neat and clean our environment, to protect our environment. क्या क्या points थे? Number 1, never use reverse pond wells etc. for washing clothes and for bathing animals and for bathing. हाँ, यानी कि पानी में जो है, पानी वगैरह जो है, रिवर है, पॉन्ड्स हैं, वेल्स हैं, इसमें आप नहाइए मत, कपड़े मत वॉश करिए, एनिमल्स को मत नहलाइए स्पेशली, ठीक है. नंबर 2, ऑलवेज कीप योर नेबरिंग एरिया नीट एंड क्लीन. आसपास की जगह को क्लीन रखना है. नेवर थ्रो वेस्ट मटेरियल्स हियर एंड देयर बट ओनली एट द अलॉटेड प्लेस. इधर उधर कूड़े गंदगी डस्ट मत फेंकिए. जो भी अलॉटेड प्लेस है जहाँ बना है डस्ट डालने के लिए वहीं पे डालिए. नंबर 3, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, पेट्रोल, डीजल शुड बी केयरफुली यूज. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको बहुत ही केयरफुली यूज़ करिए. डी, द पीपल शुड प्रॉपरली मेंटेन देयर मोटर व्हीकल्स सो दैट दे आर नॉट एमिटिंग एक्सेसिव स्मोक. बहुत ही प्रॉपरली आप यूज़ करिए इन मोटर व्हीकल्स का. द फार्मर शुड अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर और ये पेस्टिसाइड्स वगैरह का बहुत ही लिमिट में यूज़ करना चाहिए. एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर हार्मफुल. नेवर डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट फॉर पिटी इकोनॉमिक गेन्स. अपने फ़ायदे के लिए या इकोनॉमिक अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने गेन करने के लिए आप फॉरेस्ट वगैरह को मत काटिए, मत बर्बाद करिए. फॉलो फैमिली प्लानिंग मेजर्स. फैमिली प्लानिंग को ध्यान में रखिए, उन मेजर्स को फॉलो करिए. Alternative means of fuel should be used, placing wood. Never use loudspeaker, radio sector and heavy voice, heavy sound. बहुत ज़्यादा साउंड के लाउड स्पीकर वगैरह को नहीं यूज़ करना चाहिए. So these all points are very important. Without all these, it is not possible for us to protect our environment. So these all are the important steps taken by the state government. So I hope you can understand all the steps taken by the government, which is very very important for protecting our environment. That's all for today. Thank you so much.